हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर थर्ड लेक्चर कर रहे हैं, जिसके अंदर आपका क्या टॉपिक है? मेंस्ट्रुअल साइकिल. Menstrual cycle is what? It is a event that occur in every female in which reproductive phases are normal, where in it cyclic changes occur. That means it is a time period of one cycle complete and next cycle arise. Okay, that means starting point and again and then again start. So it's a cyclic period of how many days? 28 to 29 days, and it occur in every primates like apes, monkey and human. In animals, menstrual cycle doesn't occur. Okay, there is another cycle occur that is called as estrus cycle, but that will discuss later. But here we are talking about the menstrual cycle. So this cycle is of 28 to 29 days. और ये cycle कब start होती है? It occur at the age of puberty. जब एक फीमेल के अंदर puberty period start होता है, that means age of 10 to 12 years it start, and that period is called as the menarche. With this starting period, there are other changes also, like breast development, pubic hair development, sharpen of eyes, sharpen of features, sharpen of voice. These features arise at the age of puberty, and it ends as a time period of 50 years. यानी कि when a female achieve 50 years of age, then this cycle stop and ends. This menstrual cycle we study in two phases. First phase is called as the follicular phase, and second phase is called as the luteal phase. In follicular phase, ovum in follicle matures. That means follicle formed in it, and in luteal phase, corpus luteum formed. That help arising of progesterone hormone. Okay, so this is the phases and days. That means cycle ends in 28 to 29 days, and this is a picturization, or you can say a days, number of days, that means 29, 28 days cycle, showing with various pituitary hormone, ovarian events, ovarian hormone level, uterine events, and number of days. That complete cycle in one picture. Okay, so in it I am depicting here number of days like 1, 3, 5. I am depicting odd number of days. You can even write 2, 4, 6, 8. It depends. Doesn't matter, because cycle ends in 28 or 29 days. So in last I am writing here is 29 and first day. That means 29 day ends and first day start. There is no differentiation between 29 and first day. ओके, बिकॉज यहाँ पर ये साइकिल दोबारा से शुरू हो चुकी है, इसीलिए इसको हमने 29 या फिर फर्स्ट डे काउंट किया है. अब आपकी बात आती है कि इसके अंदर क्या क्या होता है. ये यूटेराइन इवेंट्स हैं, ये यूटेराइन के अंदर इवेंट्स हो रहे हैं. कौन कौन से इवेंट्स? फर्स्ट 3 days और फर्स्ट 5 days आई एम शोइंग हियर मेंसेस. दैट मीन्स इन दिस पीरियड ब्लीडिंग अकर फ्रॉम द वेजाइना. ये ब्लीडिंग होती कैसे है? अगर मैं डायग्राम बनाती हूँ आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, तो क्या होता है, यहाँ पर ये एंडोमेट्रियम है. ये एंडोमेट्रियम जो है, इसके अंदर क्या शुरू हो जाती है? ब्रेकिंग ऑफ सेल्स. एंडोमेट्रियम सेल्स जो है उनके अंदर टूट फूट शुरू हो जाती हैं, और वो क्या करती हैं? बॉडी से बाहर निकलती हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, एंड इट्स कॉल्ड एज वेस्टिंग ब्लड. इट्स नॉट द करेक्ट ब्लड, इट्स वेस्टिंग ब्लड, जो कि फीमेल बॉडी को कोई हार्म नहीं करता है, सिर्फ इसको बॉडी से बाहर निकलना होता है, बिकॉज ये एक साइकिल से दूसरी साइकिल स्टार्ट करनी होती है. आफ्टर 5 days or from 5 to 13 days, I am saying here this is a follicular phase, because here number of follicles formed, and in after ovulation from 15 to 27 days or 29 days, this is called the luteal phase. Follicular phase can be less or big. That means from 5 to 13 or 14 days
from 3 to 13 or 14 days, but luteal phase always remain constant. ये हमेशा ही आपका 15वें दिन से लेकर और 28वें या 29वें दिन होगा, बट ये जो फोलिकुलर और मेंस्ट्रुएशन पीरियड है ये कम और ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड्स ऑन फीमेल टू फीमेल, बिकॉज उनकी बॉडी के ऊपर काफ़ी सारे स्ट्रेस, काफ़ी सारे उनकी एक्टिविटीज़, उनका एंगेजमेंट इन वेरियस एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं मेंस्ट्रुएशन डेज पर. इट वेरी फ्रॉम 3 to 5 और 3 to 8 days in some females. Okay, this is the secondary phase that is called as the secretory phase and luteal phase, because यहाँ पर हमारा जो corpus luteum है ये ग्रो करता है, उसके बाद ये डिजेनरेट हो जाता है. एंड हेयर 29 और 1 इज डिपिक्टिंग एज नेक्स्ट साइकिल बिगिंस. ओवेरियन हार्मोन्स हमारे कौन कौन से हैं यहाँ पर? प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन. With black color I am showing progesterone hormone and with green color I am showing here estrogen hormone. As you know that progesterone hormone level is remains constant. वो स्मूथली जा रहा है, ओवुलेशन भी हो गया है, और ये उसके बाद क्या होता है? बाद में राइज होता है, क्योंकि ये ओवुलेशन में कोई हेल्प नहीं कर रहा है. ये हेल्प किस में कर रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम में. लेकिन जो एस्ट्रोजन हार्मोन है आपका, ये क्या कर रहा है? ये बिफोर ओवुलेशन मिड ऑफ साइकिल, दैट मीन्स 14 डेज आपका मिड ऑफ साइकिल हुआ, तो 14 और 13 डेज से पहले जब ओवा रिलीज हुआ है उससे पहले ही ये साइकिल क्या है, ये जो एस्ट्रोजन है ये क्या करता है? राइज करता है. और उसके बाद ओवुलेशन हो गया आपको 14 डेज पर. ये जो ब्लू लाइन मैंने दिखाई है ये मिड पॉइंट है साइकिल का, और इस दिन ओवुलेशन हुआ है, उसके बाद इसका लेवल डाउन चला गया. अगेन ये राइज करता है 27-26 डेज के करीब, ताकि फिर से साइकिल को इसको स्टार्ट होना है. ये है आपका ओवेरियन इवेंट्स. प्राइमरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी, टर्शियरी, मैच्योर फॉलिकल जिसको मैंने ग्राफिकल फॉलिकल बोला है, इसी के अंदर एंट्रम कैविटी बनी है, और 14 डेज को यहाँ से क्या रिलीज हो गया? ओवरी से ओवा रिलीज हो गया है. ये ओवुलेशन है हमारा, ठीक है, इसको हमने ओवुलेशन बोला है. ओवुलेशन. उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है जिसने प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करना था, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हमारे किस में हेल्प करता है? प्लेसेंटेशन में, प्लेसेंटा फॉर्मेशन में. जो फिटस है उसको एक सेफ एनवायरनमेंट देने में हेल्प करता है. लेकिन एज वी नो फर्टिलाइजेशन तो हुई नहीं, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाता है? डिजनरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है. आप देखेंगे कि इसका जो साइज है वो डिक्रीजिंग वे में है. उसके बाद आपका है पिट्यूटरी हार्मोन, जो कि हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड ने सिक्रेट किए हैं. यहाँ से क्या होता है? यहाँ पर दो हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि किसको स्टिमुलेट करेगा? हमारे ओवुलेशन को स्टिमुलेट करेगा. ठीक है, तो ये हमारे दो क्या हैं? ये हमारे क्या हैं? दीज आर आवर व्हाट? दीज आर आवर हार्मोन्स. ओके, सो दिस इज द साइकिल that depicting all the pictures of the menstrual cycle. This is the hormonal control of menstrual cycle. Hormonal control is what? हार्मोन्स कैसे कंट्रोल करेंगे इसको? ये मैकेनिज्म दिखा दे रखा है पूरा इसका, ये मैं आपको बताती हूँ. हाइपोथैलेमस जो कि हमारे कहाँ पर लाइक करता है? मिड ब्रेन में. ये सबसे पहले स्टिमुलेट करता है हमारा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को. और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक तरफ तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है, और दूसरी तरफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है. जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये क्या करता है हमारा? ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हमारा ओवुलेशन को स्टिमुलेट करता है. उसके बाद बात आती है आपकी कि इसके साथ ही हमारे दो स्टीरॉयड हार्मोन भी हैं. कौन कौन से? ये है हमारा एस्ट्रोजन और दूसरा हमारा है प्रोजेस्टेरोन. ये एस्ट्रोजन हार्मोन जिसका हमने लेवल यहाँ दिखाया है, ये किस किस डेवलपमेंट को हेल्प करेगा? ब्रेस्ट को, वजाइना के अंदर थिकनिंग को, यूटरस की थिकनिंग को, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को. यानी कि ये वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है जो फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए. और प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा है? ये प्लेसेंटा को प्रमोट कर रहा है. ये कह रहा है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गई, बेबी को खाने के लिए, बेबी को ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस थिंग्स, ऑक्सीजन के लिए प्लेसेंटा चाहिए. चारों तरफ एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर चाहिए जो कि उसको प्रोटेक्ट करेगा, एक एनवायरनमेंट देगा, और उसको क्या कहेंगे? प्लेसेंटा. और थिकनिंग, सर्विकल म्यूकस, ये रास्ता क्लोज हो जाता है जब एक फीमेल के अंदर एक बार बेबी जब यहाँ पर सेट हो जाता है, तो ये रास्ता जो है ये क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है, सर्विकल म्यूकस. और ये कब खुलता है? जब पार्चुरेशन, बेबी का बर्थ होता है उस टाइम पर ये ओपन होता है.
and these are the structures and their hormones. Hypothalamus, we know gonadotropin releasing हार्मोन है, एंटीरियर पिट्यूटरी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, फोलिकल ओवरीज के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, और कॉर्पस ल्यूटियम के लिए आपको दोनों हार्मोन चाहिए हैं, आपको प्रोजेस्टेरोन भी चाहिए। देखिए दोनों का लेवल राइज हो रहा है, ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल राइज हुआ, ये एस्ट्रोजन का लेवल राइज हुआ, तो यहाँ पर आपको दोनों हार्मोन चाहिए। और ये हमारा कंप्लीट क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। स्टार्टिंग पॉइंट को हम कहते हैं मेनॉर्के एंड एंडिंग पॉइंट को कहते हैं मेनोपॉज। ओके, और इसके बीच में हर महीने जब भी मेंस्ट्रुअल होगा एक ओवा रिलीज होगा। अगर एक बार फर्टिलाइजेशन हो गई है तो उसके बाद जितना भी गेस्टेशन पीरियड है उस टाइम पीरियड तक कोई ओवा रिलीज नहीं होता। दैट मीन्स फ्रॉम दैट टू ब्रेस्ट फीडिंग, अगर फीमेल एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराती है उस टाइम पर भी ओवा रिलीज होने की संभावना बहुत ही कम होती है। इसीलिए ये है हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल।